व्हेन वी से डेवलपमेंट, सबसे पहले तो हम लोग जब व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक्स, we must have heard about the word that the particular country is better developed. This particular country is still not developed. So, what is the criteria that makes us developed or developing or underdeveloped? What are those factors which helps us to assess the development of any area, any country? It can be different. And how do we calculate them? हम लोग यहाँ पर तो वी आर नॉट गोइंग टू एनी कैलकुलेशंस, वी विल बी ओनली, जो हमारा कैलकुलेशन है भी, दैट्स अ वेरी सिंपल वन. Yes, if you are pursuing economics in your future, you will be having these types of questions, the statistics, the data, जो आपको समझाता है कि हम कहते हैं कि हमारी कंट्री भी डेवलप नहीं, हमारी कंट्री बहुत डेवलप्ड है. So what are those factors, basic factors? Then we also come to know what are the factors that affect the development of a country. कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? And last but not the least, can development be made without compromising with the future? Is it possible? And if it is possible, how it is possible कि हम बिना अपने रिसोर्सेज को डिस्क्रिमिनेटली यूज किए बिना हम डेवलपमेंट को कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? दिस इज द एंटायर चैप्टर अबाउट, राइट? नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड आई एम जस्ट गोइंग टू just you the main terms. Anyway, most of you are having my notes with you. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेवलपमेंट? मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, इट इज प्रोग्रेस. डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है प्रोग्रेस, बेटरमेंट. पहले ऐसा था, अब ऐसा है. लाइक मोस्ट ऑफ आवर विलेजेस, हमारे यहाँ पर जितने भी विलेजेस हैं, इन द अर्लियर पीरियड दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू वाटर. Then the roads were not laid, but अब at least, पहले तो बिल्कुल नहीं था, अब to some extent some of the villages have been provided with the water facilities, with the road facilities, with electricity. यानी कि उनको हम कह सकते हैं कि these are the factors that has helped, यानी कि वो जो एरिया है that has developed. Secondly, is the meaning of development same for everyone? जो आपके लिए डेवलपमेंट है, क्या वही मेरे लिए है? लाइक अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, लेइंग ऑफ रोड्स. डज इट मीन दैट आई एम ऑल्सो डेवलप्ड? हाउ डू वी असेस एन इंडिविजुअल meaning of development to individuals? The development goals can be same also, the developmental goals may be different also. अब for example, आप लोग सारे बच्चे हो, फिलहाल के लिए all of you might be saying यार स्कूल खुल जाए तो हम मान सकते हैं. डेफिनेटली फिजिकल टीचिंग को आप लोग, मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल बी प्रेफरिंग. दैट मीन्स वन पर्टिकुलर पॉइंट में आप लोग सबका सिमिलर गोल है, बट द सेम गोल मे नॉट बी देयर. अगर मैं बच्चों से पूछूं व्हाई आर यू स्टडिंग, एक बच्चा कहेगा मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ. सेकेंड कहेगा मैं पढ़ लिख कर आई वॉन्ट टू बिकम एफिशिएंट ऑन माई ओन. थर्ड कहेगा
पढ़ाई नहीं होगी तो मे बी इन द फ्यूचर आई मे नॉट बी डूइंग एनीथिंग। यानी कि है पढ़ाई, लेकिन उसके जो नोशंस हैं, परसेप्शंस हैं, दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। लाइक इफ एनीवन आस्क मी, मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज एजुकेशन फॉर यू, इज इट टीचिंग, तो मैं कहती हूँ नो। मुझे लगता है आई एम एजुकेटेड ओनली इफ, अगर मैं अपनी जो थिंकिंग्स हैं उनको ब्रॉड करती। I cannot be called educated just because I have some degrees. But आप किसी और से पूछो, they will say education का मतलब है बहुत सारी degrees. I am educated because I am having degree. That means there are similar as well as different notions for development also. Similar goals हमारे कौन से होते हैं? Income. Income is a common goal for all of us. Any country, any area, any society is called developed when the income of the people is increased. यानी कि सबसे पहला as well as the common goal for everyone for development is income. Whereas there can be different notions also. Like कोई कहेगा कि for me development means betterment of education, दूसरा कहेगा development means betterment of business, तीसरा कहेगा development means betterment of agriculture. यानी इनकम तो सबके लिए कॉमन है. Everyone wants to earn, whether it is rich, whether it is poor, whether it is middle class, whether it is higher class. लेकिन डेवलपमेंट के जो अदर नोशंस हैं जो सबके नहीं होते, which is called as contradicting notion. एग्जाम्पल, एक प्लॉट है, देयर इज अ प्लॉट. नाउ द गवर्नमेंट वांट्स कि ये प्लॉट मैं किसी को दे दूं जिससे कि दे आर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए. एग्रीकल्चर वाला कहेगा मुझे दे दो, आई एंड ऑल्सो गिव मी इरिगेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, जिससे कि आई कैन सो मोर crops. But an industrialist on the same plot, he would say give it to me because I would establish an industry here and I would generate employment. दोनों अपनी जगह गलत नहीं है और ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक है. इन उड़ीसा the government of India जो है, it was establishing the industries. That is because the government wanted कि वहाँ पर backward लोग जो रहते हैं, those people who are not having access to income, उनको थोड़ा सा employment मिलेगा. ठीक है. But वहाँ जो local people हैं, they said we don't want industries. Industry से हमारे जो indigenous मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं वो कट जाएंगे. We want something related to agriculture. That is different notions. Same आपका income, लेकिन different notions आपके हो गए contradicting, मतलब एकदम बिल्कुल opposite. और उड़ीसा के अंदर this has happened in this was Poxo factory कुछ था. The government wanted to establish industries so that the employment is generated, whereas the common people wanted, and वहाँ पर जो है there was a protest. दिस इज डिफरेंट नोशंस. उनका कहना था कि आप हमको फर्टिलाइजर्स, आप हमको जो है HYV सीड्स, हम लोग को वो चीज़ें दो जिससे कि हम अपने आप को डेवलप करें. गवर्नमेंट का मानना था कि अगर वहाँ इंडस्ट्रीज होंगी तो लोग वहाँ काम करेंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्टरी नोशंस. राइट? एनीथिंग विच यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? Kindly be free and
Open your mic so that I'm also able to understand that you are there. Yashika, are you? Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay. Now, the third one is डिफरेंट नोशंस के अंदर ही हमारा आ जाता है मिक्स्ड गोल्स. मिक्स्ड गोल्स, डिफरेंट नोशंस हमारे हो गए कॉन्ट्राडिक्टरी, एंड मिक्स्ड गोल्स हमारे हो जाते हैं नॉट ओनली एवरीवन वांट्स इनकम. इनकम तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नो वन कैन से दैट आई डोंट वांट एनी इनकम. कोई भी नहीं कह सकता. You ask a person who is a pensioner, he would also say. Ask me, I would also say. You ask anyone, everyone will say. So that is a common goal. But mixed goal है drinking water, safety, congenial environment, means apart from income, everyone will say हमारे को safety चाहिए, environment चाहिए, we want health facility, we want education facility. मतलब ये भी हमारे goals होते हैं. Not that only income is there. With income, like for a farmer, income के साथ he would say कि मुझे जो है सेफ्टी चाहिए मेरे खेतों के लिए. आई वॉन्ट ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फैसिलिटीज एवरीवन वांट्स. There may be people who would say that we want education, we want schools, we want colleges, plus the environment. यानी डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है इनकम. Sometimes there might be contradictory goal and sometimes there might be mixed goals. आपके पेपर में दो क्वेश्चंस आते हैं. एक आता है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस. तो उसके अंदर आपको लिखना है जैसे बोला जो मैंने एग्जांपल दिया था उड़ीसा वाला वो. लेकिन डेवलपमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ गोल्स है तो उसके अंदर आपको लिखना है अपार्ट फ्रॉम इनकम वी ऑल्सो नीड ड्रिंकिंग वाटर, सेफ्टी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ फैसिलिटीज, ये भी चाहिए. अब ये तो हमारा होता है इंडिविजुअल, मतलब फॉर, क्योंकि एक कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है इंडिविजुअल, सोसाइटी, सोसाइटी से कंट्री. यानी कि अगर नेशन का डेवलपमेंट होता तो सोसाइटी का होता, सोसाइटी का होता तो इंडिविजुअल का होता. सो दैट इज व्हाई वी स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल टू नेशन. नाउ व्हाट इज national development? It means when we are looking for all these factors, income, drinking water, safety, environment, health, everything, industrialization, agriculture, इन सबको हम एक्सेस करते हैं. एंड वी से दैट हाउ द कंट्री इज डेवलप्ड. क्या उस कंट्री के अंदर इनकम है, प्लस क्या उस कंट्री के अंदर ड्रिंकिंग वाटर, सेफ्टी, हेल्थ फैसिलिटी, एनवायरनमेंट, ये सब कुछ है. लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ एनी वेस्टर्न कंट्री. in most of the western countries in most of the western countries what happens is if you go there, मतलब अगर आपको कहीं वहाँ जाना है या आपका कोई रिलेटिव वहाँ रहता है तो आप उनसे पूछो, they have to pay a tax. now this tax जो वो पे करते हैं that is used for provision of schools, education, then आपके health facilities, then आपके roads, and everything is done by government. The people do not need to run around for the hospitals. They can go to any hospital, सबको एक health card मिल जाता है. And the cards are different. For senior citizens it is different, for
वर्किंग क्लास इट इज़ डिफरेंट, बट यू हैव द कार्ड, यू गो टू, मतलब कहीं पर जाओ और अपना इलाज करो. प्लस if you look into the other factors like education, they have an open system. Corruption कम है, and that is why they are called as developed countries, because all these points जो हमने ऊपर पढ़ा है, water, safety, environment, health, education, everything is there, access to the common people. Now how do we assess the national development? नेशनल डेवलपमेंट जो है उसको हम लोग लेकर चलते हैं विद द वर्ड व्हाट वी कॉल एज एवरेज इनकम. दिस एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज PCI, यानी कि पर कैपिटा इनकम, यानी कि इनकम पर पर्सन, इनकम पर पर्सन. एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड? जो हमारे टोटल इनकम है, गवर्नमेंट जो है एक ओवरऑल इनकम को कैलकुलेट करती है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री. एंड वर्ल्ड बैंक जो है इट uses this criteria. वर्ल्ड बैंक जो है इसी क्राइटेरिया को यूज करती है. दिस इज अ रफ वेग क्राइटेरिया. रफ वेग का मतलब होता है इट इज नॉट एक्चुअल क्राइटेरिया. ये आपके बैक का क्वेश्चन है. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर बैक. हाउ? नाउ लेट अस से हमारे कंट्री का एवरेज इनकम तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, it is say 1 lakh rupees. I am just taking an example, it is not the reality. And the number of people living are 1000, right? तो एवरेज इनकम हमारा बन जाता है ₹100 पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर पर्सन. बट अब आप देखो, क्या ये 1000 के 1000 लोग काम कर रहे हैं? No. Some may be old, some may be children, some may be ill, some may not be working. Then how did we calculate it? अगर 1000 जने एक जगह पर रहते हैं तो क्या हर एक इंसान काम कर रहा होता है? नो. हम अपनी फैमिली में देख लो, नॉट एवरीवन इज वर्किंग. कोई बूढ़ा है, रिटायर्ड है, कोई बच्चा है, the person is not working. घर के अंदर normally women हमारे यहाँ नहीं काम करती हैं. So how can we say that PCI is same for every, it is the right criteria? Moreover, there are some disparities. ये पेपर में आता है आपके. There are some disparities. Disparities का मतलब होता differences. अब हमारे यहाँ 29 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट है, सॉरी. तो क्या सारे स्टेट से सेम इनकम आता है? इज द इनकम दैट इज कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु इक्वल टू पंजाब? नो. तमिलनाडु में आपकी सीमेंट इंडस्ट्री ज्यादा देती है, पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ज्यादा देती है, एंड द पर कैपिटा एंड द इनकम इज नॉट द सेम ऑल्सो. So how can we say that अगर 28 states हैं तो 28 states are having the same income? No, they don't have. आपके बुक में एक टेबल बना हुआ है. नाउ एक शहर है A, दूसरा शहर है B. A में 4 सिटीज हैं, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4, और B में भी 4 सिटीज हैं. नाउ सिटी 1 का इनकम है
दिस इज द एवरेज इनकम, मतलब दिस इज द इनकम ऑफ 4 cities इन अ कंट्री. ये है कंट्री ए और कंट्री बी. अब यहां पर जो कंट्री बी है वहां पर their average income is 43,000. ठीक है, इनका भी 43 है. कैन यू से दैट दिस इज सेम? मतलब दोनों की इनकम 43,000 ही है. जो एवरेज इनकम है, हमने एवरेज इनकम को कैसे कैलकुलेट किया है? हमने चारों को प्लस किया एंड डिवाइडेड इट बाय 4. और ये आपका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, which comes in numerical also and which comes in MCQ also. You have to total it and divided it by the number of. इसकी भी 43,000 है and it is also having 43, it is also having 43. लेकिन अगर आप डिस्पैरिटी को देखोगे तो यहाँ देखोगे, यहाँ 10,000, 12,000, 11,000, 10,000, यानी कि एवरेज सेम रहा है. यहाँ 100 रहा, 200 रहा और 2 शहरों में 20,000 रहा. यानी कि देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन 3 and 4 and 1 and 2. So that is why average income cannot be taken as the right criteria, because it hides the disparities. Because it hides the disparities. जो differences होती हैं वो हमें तो एवरेज दिख रहा है. एवरेज ऑफ अमेरिका इज 43, एवरेज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो 43. तो इंडिया को मतलब कि हम लोग डेवलपिंग कहते हैं और यूएस को डेवलप कहते हैं. क्यों कहते हैं भाई? तो दिस इज बिकॉज एवरेज इनकम डज नॉट शो द डिस्पैरिटीज. राइट. अब सेकेंड क्राइटेरिया हमारा होता है इनकम के अलावा. वी हैव द सेकेंड क्राइटेरिया एंड दैट इज आपका इनकम, हेल्थ. दीज आर द फैक्टर्स. इनकम, health, education, public facilities. And these factors are taken by the UNDP, United Nations Development Program. It is an organ of United Nations. इनका काम होता है to measure the development of countries. और वर्ल्ड बैंक जो होता है that measures the economic development of a country by using the average income, so that कभी ज़रूरत पड़ती है तो it helps in reforming the economies, it helps in giving loans, उसके लिए करती है. Whereas UNDP जो है वो सिर्फ measure करती है the country on the basis of the income of the people, health, education, public facilities. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. Because some of you are quite new, so कुछ बच्चे तो सिर्फ रिविजन ले रहे हैं, तो I know कि that might be clear, but some are new, तो you should be very clear to you. Now for health, हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स को लेकर चलते हैं? मतलब these are the factors which are taken by UNDP. आपके पेपर में आता है ये क्वेश्चन कि what is the criteria taken, and it's also an NCERT question, that what are the factors that is taken by the UNDP. So they take besides income, they take health, education and public facilities. हेल्थ को हम किस क्राइटेरिया में देखते हैं, मतलब किस कंट्री को हम हेल्दी बोलते हैं? तो we go for the birth rate, the death rate, the
infant mortality rate. Means, अब what is the criteria for calculating birth rate? The number of people, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में पर थाउजेंड the number of birth in a year, the number of birth that took place in an area of 1000 people, उसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं. एंड इसका कंट्रास्ट है आपका डेथ रेट. द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु हैव डाइड इन एन एरिया, उसको हम लेते हैं एज डेथ रेट. किसी कंट्री में अगर बर्थ रेट ज़्यादा और डेथ रेट कम है, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. क्योंकि अगर बर्थ रेट ज़्यादा एंड डेथ रेट कम होगा तो द नंबर ऑफ पीपल हु आर ईटिंग वो ज़्यादा हो जाएगा. एंड ऑन द अदर हैंड, अगर लोगों की तबीयत खराब हो गई, लोगों की डेथ हो गई, टाइम से पहले हो गई, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ पे भी असर आएगा. एंड जो लोग कमाने वाले हैं, अगर उनकी डेथ हो गई तो हमारा इनकम जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जो अभी पैंडमिक का सेकेंड वेव आया था, मेनी पीपल हु वर इन देयर वर्किंग एज 25+, दे हैड लॉस्ट देयर लाइफ्स. अब उनकी डेथ से हमारे इकोनॉमी में डेफिनेटली फ़र्क आएगा. बिकॉज जो वो कमा रहे थे, मे बी उनका जो काउंटर पार्ट है वो उतना ना कमा पाए, और मे बी हो सकता है कोई है ही नहीं जो कमाने वाला हो. सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द बर्थ रेट एज वेल एज द डेथ रेट. थर्ड, IMR, infant mortality rate. The number of children who died before reaching their 1 year, पहले साल से पहले, means before they have reached their first year, उससे पहले जो number of deaths हो जाते हैं. and ऐसा क्यों होता है? that is because of the poor health services, poor caring of mothers. इनकी वजह से आपका IMR बढ़ जाता है. इफ़ यू लुक बिहार, उड़ीसा, इन जगहों में आपका जो IMR है वो बहुत ज़्यादा है. whereas if you look into केरला, उनका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है. नाउ इन योर पेपर द क्वेश्चन विल कम, I'll explain later. Similarly, in Punjab, the per capita income is high. मतलब वहाँ पे जो एवरेज इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का IMR जो है वो भी बहुत ज़्यादा है. यानी कि वहाँ द नंबर ऑफ डेथ बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर जो है वो भी ज़्यादा है. इससे पता लगता है कि वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है पंजाब में नहीं. द नेक्स्ट वन इज education. In education, we take the literacy rate, net attendance ratio, ये हम देखते हैं. Now, what is literacy rate? How do we call a person literate or illiterate? Any child above 7 years, any child above 7 years who know to read or write any one language with understanding is called as literate. कोई भी बच्चा जो 7 years से बड़ा हो, जिसको कोई भी एक लैंग्वेज लिखना और पढ़ना लिखना with understanding आता हो, तो that person is called as literate. Do not confuse the word literate with educated. And in our country, Punjab,
जाना है ना? In our country, Punjab, Maharashtra, Bihar, parts of UP, they are all having the literacy rate low. Whereas Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, southern states, they have a high literacy rate. Now, if we look into both of these factors, health और education दोनों को देखें, तो आप देखो पंजाब, महाराष्ट्र, ये जगह जो है PCI में बहुत अच्छे हैं, मीन्स देयर एवरेज इनकम इज गुड. बट अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट बोले तो इट इज लो. दिस इज बिकॉज in Kerala the health facilities, the education facilities are better than any other country. In fact Kerala को तो हम लोग Kerala model बोलते हैं. Now the next is public facilities. पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब हो जाता है आपका ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट, डेफिनेटली हॉस्पिटल्स, एक्सेस टू एजुकेशन, स्कूल्स. ये तो रेट्स थे, ये है आपके पब्लिक फैसिलिटीज. देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि राशन, many of the rural areas in our country do not have access to drinking water. There is no laying of roads, the hospitals are not there, schools are not there, basic primary schools are not there. Whereas there are areas जहाँ पर आपको ये सारी फैसिलिटीज प्लस, बिकॉज हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना एक दिन में 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाते. दे डोंट हैव दैट मच ऑफ इनकम. सो अगर हमें उनके इनकम को बढ़ाना है तो देयर इज वन सिस्टम विच इज कॉल्ड एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि राशन के थ्रू, यूजिंग द राशन कार्ड, the grains are provided to these people at a subsidized rates. यानी इन लोगों को जो है चावल, आटा, गेहूं, ये सब चीजें जो है सस्ते दामों पे दिया जाता है. एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, they have adopted this system and they have tried to reduce the poverty in their states. So the main criteria that we see is income, but besides income we also need education, health, public facilities. और ये सारे क्राइटेरियाज को लेता है आपका UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. नाउ व्हाट डू दे डू? इनको लेकर वो क्या करता है? हाँ, एक मिनट. इन हेल्थ we also see the person's health by calculating the BMI, body mass index, यानी कि आपके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग, आपके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग द ओवरऑल बॉडी मास को देखा जाता है. एंड इफ आप हायर में हो तो आप बीमार होने के ज़्यादा चांसेस हैं. Like you may be having obesity, you may be having heart problems, you may have diabetes, and if it is on the lower side, that is 18.5 से कम है, तो आप malnourished हो, आपको बीमारी होने के चांसेस होते हैं.
So the BMI should also be there in the health index. So how do we calculate the BMI? Yes, who can give me? Ayushi, can you give me the formula of BMI? It is weight upon your height. It is weight upon your height. लेकिन जो ये हाइट होता है उसको हम लोग मीटर्स में लेते हैं एंड स्क्वायर कर देते हैं. मान लो आपका हाइट है 150 सेंटीमीटर, तो हम उसको डिवाइड करते हैं बाय 100 तो 1.5 मीटर्स. 1.5 मीटर्स, 1.5 मीटर का आपका स्क्वायर. किलोग्राम अपॉन हाइट का स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है. सो वी ऑल्सो टेक इट. और अगर आपका 18 से कम आता है तो यू आर malnourished. एंड इफ योर BMI इज मोर देन 20, मतलब 27 तक हम उसको नॉर्मल मानते हैं, बट उससे ऊपर जाता है तो दैट मीन्स यू आर इन द ओवरवेट और ओबेसिटी. एंड दोनों होना नहीं चाहिए. 18 से आपका 25, 26 जो है वो नॉर्मल है. सो UNDP क्या करता है? इट टेक्स ऑल दीज फैक्टर्स. हाउ? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का एक, इंडिया के जो मतलब की मिनिस्ट्री है वो ये मतलब की डाटा जो है दे प्रोवाइडेड एंड दे प्रोवाइडेड टू द UNDP. UNDP का जो है they have their offices in all the major cities in all the major countries. फिर वो क्या करता है? इन डाटाओं को पाइलअप करता है और पाइलअप करके वो देखता है कि कौन सी कंट्री का सबसे ज़्यादा HDI जो है वो बना हुआ है. दे मेक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. वो इसको एनालाइज करके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाते हैं. ये पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिपोर्ट दैट इज मेड बाय UNDP या फिर हु मेक्स द HDR. तो दे मेक अ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट ऑफ इनकम, हेल्थ, पब्लिक फैसिलिटीज, एजुकेशन, इन सब. एंड उस पहले वो रिपोर्ट बनाता है एंड देन इट मेक्स द इंडेक्स. मतलब इट रैंक्स अस, हमें वो एक रैंक देता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेवलपमेंट्स. वो हमें रैंक देता है और उस रैंक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दैट रैंक, India stands on somewhere around 134 to 136th place out of 250 countries roughly. And हमसे छोटा श्रीलंका, which is an island country, it stands on somewhere around 73rd number. मतलब हम उनसे 10 गुना बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पोजीशन 134 या 136 है एंड इट ये फ्लक्चुएट करता है. वेयरएज हमसे छोटा श्रीलंका, विच इज अ स्मॉल आइलैंड, इट इज 73rd. हाँ, हमसे पीछे बहुत सारे हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, लेकिन श्रीलंका इन द एशियन रीजन सबसे हाईएस्ट है. तो वाई? ये पेपर का ही क्वेश्चन है कि वाई despite that Sri Lanka is an island, it is a small island, it is standing on 73rd position, whereas India having a large population, a large area, हम पीछे हैं. This is because Sri Lanka has invested in human development. वहाँ schools, colleges, education system, then आपका health facility, public facilities ज़्यादा है, which is not there in a country. And that is why, despite this fact that it is a small island, it is better than us.
Last but not the least is, can development be achieved क्या हम डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं इफ वी आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेस? तो द आंसर इज नो. डेवलपमेंट कैन नॉट बी अचीव बाय एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज ऑन अ लॉन्गर रन. हाँ, शॉर्ट में हो जाएगा, लेकिन अगर हम आज से 10 साल के बारे में सोचेंगे, आज तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन 10 साल बाद शायद ये चीजें नहीं मिलेंगी हमें. नाउ देर आर 2 एग्जाम्पल्स, और ये जो क्वेश्चन है, दिस कम्स इन दिस चैप्टर ऑल्सो, द सेम क्वेश्चन कम्स इन योर ज्योग्राफी ऑल्सो. दिस इज देयर इन बोथ दिस वे. इसमें आपका जो मतलब कि आपको कैसे पता लगेगा, ये इकोनॉमिक्स का है. इसमें आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स. इसमें आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स. नाउ लेट अस से देर आर 2 काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज. वन इज रिन्यूएबल एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट के लिए दोनों को यूज करते हैं. Now let us come to renewable resources like water, underground water. Water is a renewable resource, क्योंकि जैसे जैसे बारिश आती है, the rivers are flooded with river or with water, and हम उस water को underground में store करते हैं. They are stored in the underground and then we use it for irrigation and other purposes. But for the past few years, many states like Tamil Nadu, Punjab, Maharashtra have dried up. वहाँ पे जो नीचे वाटर टेबल है वो ड्राई अप हो चुका है. The reason is overuse. Overuse reduces the water table. It increases the salinity of the soil. जो soil होता है उसकी जो salinity होती है उसको वो increase कर देता है. And if water is not there, then irrigation or any other जो आपका activity है वो नहीं हो सकता. Go to any countries of UAE, वहाँ आप देखो water की कितनी दिक्कत है. And it is very true. वहाँ water bottle is 80 rupees, मतलब Indian rupee के according. Because they don't have any river, so they have to import the water. और अगर हम भी ऐसा ही करेंगे, if we are also overusing, then what will happen is one day the water table will reduce and we have to import it. Salinity मतलब नमक. Saline means नमकीन, salt. जो आपका एल्कली एंड वो होता है, तो सॉल्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है उस मिट्टी में, एंड दैट विल नॉट हेल्प, दैट विल नॉट हेल्प इन ग्रोइंग द सॉइल. सॉइल आपका जो है इनफर्टाइल हो जाता है. राइट. नाउ इफ वी लुक इनटू द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मिनरल्स आपके, फॉसिल फ्यूल्स आपके, एनीथिंग, ये सारे आपके नॉन हैं. और इनको फॉर्म करने में इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स. फॉर्मेशन टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स. देन अगर हमने आज इनको मतलब कि यूज कर लिया तो दे विल पेरिश, ये तो खत्म हो जाएंगे. देन हाउ विल मेक द हम हाउ कैन वी डेवलप? क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब है भाई कार होनी चाहिए. कार के लिए आपको मेटल्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए. अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हम डेवलप कैसे होंगे?
That means both renewable and non-renewable resources. Both renewable and non-renewable resources must be used यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट. The development which is made for the present without compromising for the future. मतलब आप ऐसे यूज करो रिसोर्सेज को, वेदर इट इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, कि वो अभी आपके डेवलपमेंट में भी काम आए एंड इट इज लेफ्ट ओवर फॉर द फ्यूचर ऑल्सो. और धीरे धीरे उस दौरान वो बनता जाएगा, तो वो खत्म नहीं होगा कभी. For that we need sustainable development. The earth's जो आपके पेरिशमेंट है, it doesn't have any geographical boundary. मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि इंडिया में खत्म हो गया है. जो आपका खत्म होता है तो इट इज ओवर अ एरिया. इट इज नॉट दैट इंडिया, ये तो हमने मार्क किया है, इट इज इंडिया, इट इज यूएस. इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करोगे तो जो आपके रिसोर्सेज है वो खत्म होंगे ही होंगे ओवर द पीरियड एवरीवेयर. लाइक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डज नॉट हैव एनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. अब पैंडेमिक है, हैज इट सेड दैट मैं इंडिया के अंदर नहीं आऊंगा, मैं पाकिस्तान में जाऊंगा? नो. All the countries have faced it. Every country has faced it with the same effect. Similarly, global warming. Entire globe is facing that. That is why it has been termed as global warming. So जो environmental degradation होता है, that is not confined to any boundary. आपके बुक में सबसे लास्ट में लिखा हुआ ये, when you जहाँ आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे. It doesn't have any boundary. When the resources are overused, when they are exploited, then the entire human have to face this tragedy. And for that, we all need to use the resources with the sustainable manner. आपके पेपर में आता है क्वेश्चन, what is sustainable development, and give example. तो आपको ये वाला जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल वाला है, ये एग्जाम्पल आपको देना, ठीक है. एंड दिस इज द चैप्टर what we call as development. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. समृद्धि, प्रवेश, अतुल, Yes, ma'am. Pravesh, you are also a new child, so I want to know. Okay. I'll share the notes. It is already there. I'll share it once again for those students who have not got it. याशिका, आपके पास है? Yes, ma'am, I have. चलिए. Right? So this is what we call as the chapter development, and of course this particular chapter is one of the important chapter with economics in the later stages. When the students are going to take economics in later, this will help them out, because we calculate the income on the basis of the statistics. यहाँ तो हमने एक overall, मैंने ऐसे ही आपको एक example दिया 10,000 12,000 करके, वहाँ आपको एक proper example दिया जाता है, and you are supposed to calculate the national income, the average income. So this helps in the overall calculation from an individual person, then to the society, then to the country, we find it out, right?
So now we can log off. Bye. Bye, ma'am. In the evening, I may keep a class for English that I'll let you know on the WhatsApp, right? Okay. Bye.